Good morning, students. I am Kailash Ujjwal, PGT Geography from KV Pokhran, Jaipur region. We are here to learn geography. As in our textbook, the first chapter's name is Human Geography, Nature and Scope. Now, we try to understand the nature and scope of human geography. As you study in the 11th class, that geography for study bifurcated into two parts or two approaches are there: systematic approach and regional approach. In the sense of systematic approach, we further divide geography in physical geography and human geography. In 11th class, we learn about physical geography, and in 12th class, we try to learn human geography. So, first, nature and scope of human geography. As you well know, geography is study of the earth in 11th class physical geography. Now we go further. Geography only deal with nature, but human geography deal with nature and humans. It means a relationship, interaction between humans and nature. So we try to understand all these things. As you know, geography for study, there are three aspects are there in the geography. The one we try to understand is as you know, geography as a field of study is integrative, empirical and practical. 3 points are there. So in interrogative, geography deal with other subjects, integrate with other subject and interact with all the subjects to learn about our earth and the relationship between humans. Second part, empirical. Geography will learn from our experiences. Like in the 11th class, you read Köppen's classification of the climatical zones. Köppen himself goes to every continent to know what type of climate is there. So that geography we learn from empirical method. It means from our own experiences. And then third is practical geography. As you know, we are in geography, 30 marks practical is there. All things, all the learning come from practical in geography. Without practical, if you not go to the river, आप नदी के बारे में नहीं जान सकते, आप माउंटेन नहीं देखेंगे तब तक आप माउंटेन और प्लेट्यू में अंतर नहीं कर सकते. तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है. तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल जितना ज्यादा होगा उतना लर्निंग इजी हो जाती है. तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी का हमने देखा कि ज्योग्राफी की जो स्टडी है वो इंटीग्रेटिव तरीके से हो सकती है, एम्पिरिकल तरीके से हो सकती है और प्रैक्टिकल तरीके से हो सकती है. तो तीनों प्रकार की ज्योग्राफी हमने यहाँ पर पढ़ ली. अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. तो ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी को दो तरह से लिया जाता है. ज्योग्राफी इज अ लॉ मेकिंग or theorizing subject, that is called nomothetic, and the second one is descriptive and idiographic. nomothetic में क्या होता है, लॉ मेकिंग होता है, अर्थ के जितने भी लॉज है उनके बारे में स्टडी की जाती है, उनको प्रूफ करना पड़ता है. सो इन दिस सेंस वी डील विथ फिजिक्स आल्सो. सो ज्योग्राफी विथ फिजिक्स इंटीग्रेटिव. देन इन डिस्क्रिप्टिव वी डिस्क्राइब. अगर हम नदी के बारे में जानना चाहते हैं, माउंटेन के बारे में जानना चाहते हैं, प्लेट्यू के बारे में जानना चाहते हैं, जब हमने उनको जान लिया तो हम उनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. तो पहले प्रैक्टिकल हुआ, फिर थ्योरीजाइजिंग हो गया. तो दोनों नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक दोनों को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है. इस साइंस में अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये तीन चीजें यहाँ पर ज्योग्राफी में देखने को मिलती है: नोमोथेटिक वर्सेस इडियोग्राफिक. ज्योग्राफी दोनों तरीके से पढ़ी जा सकती है. अप्रोच दो है, रीजनल या सिस्टमेटिक अप्रोच, ये हमने यहाँ पर पढ़ रखा है, और दूसरा फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. तो फिजिकल ज्योग्राफी आप 11th पढ़ चुके हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी हम 12th में डील करेंगे. तो ये यहाँ पे हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं. Now we go to another point. In geography, we mostly consider known to unknown. There written, we often talk of the face of the earth, eye of the storm, mouth of the river, snout of the glacier, neck of the isthmus and profile of the soil. अब आप इसमें देखिएगा, न तो अर्थ का कोई फेस है, न ही स्टॉर्म की कोई आई है, तो फिर क्या चीज है इसमें? बड़ी चीज हमें जो देखने को मिलती है वो देखिएगा आप इसमें,
आप ये देखिए, ये है माउथ ऑफ द रिवर, यहाँ का मुंह तो नहीं है, लेकिन कंपेयर किया कि जिस चीज से आप पहचानोगे कहां से, तो फेस से, तो इसको कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। नेक्स्ट, आई ऑफ द टॉर्नेडो और आई ऑफ द स्टॉर्म। तो ये जो एरिया होता है छोटा सा यहाँ बीच में, इसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। बिल्कुल शांत होती है हवा, यहाँ पे चारों तरफ हवा चल रही है 300 से 400 किलोमीटर की स्पीड में, और यहाँ पे बिल्कुल जीरो, तो इसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। अब आई हमारी आंख की तरह बन रहा है सर, देखिए आप शेप, इसलिए इसको कंपेयर करने के लिए, याद करने के लिए हम इसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। तो आपको पता चलेगा जैसे आंख होती है उस तरह से होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखा। फिर ये देखिए इस्थमस, इस्थमस में क्या होता है, दो तरफ लैंड होती है और बीच में एक वाटर बॉडी है। ये डमरू की तरह आप देखिए, बीच में से सकरा है, दोनों तरफ चौड़ा है, बीच में लैंड कनेक्ट हो जाए दोनों तरफ, ऐसे इस्थमस कहा जाता है इसको। ये स्ट्रेट है, दो तरफ पानी है, बीच में कनेक्ट हो रही है, स्ट्रेट है, ये इस्थमस है एक तरह से। तो इस्थमस और स्ट्रेट में अंतर, तो इस्थमस को नेक यानी गला जैसे होता है इंसान का, इधर गर्दन ये बॉडी देखते हैं, तो ये गले की जितना हो गया, तो इसलिए इसको नेक से कंपेयर किया कि नेक जिस तरह से पतली होती है, सिर बड़ा है, बॉडी बड़ी है, तो इसको इस तरह से कहा जाता है। ये भी एक सीन इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इस्थमस हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इस तरह से हम बॉडी के अलग अलग पार्ट से कंपेयर करके ज्योग्राफी को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद जर्मन ज्योग्राफर जो थे मोस्टली क्या कहते थे, स्टेट एंड कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कहते थे स्टेट या कंट्री जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डेड नहीं है, वो ग्रोथ करता है। जैसे बॉडी ग्रोथ करती है वैसे ही कंट्री भी ग्रोथ करता है, स्टेट भी ग्रोथ करता है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे। तो ग्रोथ करना भी बहुत जरूरी है। तो मोस्टली जर्मन ज्योग्राफर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कंट्रीज को लेते थे। तो ये हम यहाँ पे फिर आप बात करेंगे नेटवर्क ऑफ रोड की। अगर हम बात करें, आप देखिएगा ये पॉइंट सबसे ज्यादा, नेटवर्क ऑफ रोड। अब आप देखिए रेलवेज एंड वाटरवेज, इनको हम क्या मानते हैं, इनको मानते हैं आर्टरीज ऑफ द सर्कुलेशन। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड को लाने ले जाने का काम आर्टरीज के रूप में है, तो आर्टरीज अगर बंद हो जाए, आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट अटैक आ जाता है। उसी तरह से अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना भी है, रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, इनको आप बंद कर दीजिए। अभी हम नेक्स्ट अभी लेटेस्ट एग्जांपल में हॉर्मुज के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया तो हमारा पूरा गैस आना बंद हो गया, तो इसीलिए उसको आर्टरीज के रूप में देखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। तो किसी भी कंट्री के लिए नेटवर्क ऑफ रोड है, रेलवेज है, हाईवेज है, या वाटरवेज है, वो या एयरवेज भी, वो सारे के सारे आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन कहलाते हैं। इसलिए इसने हमने कंपेयर किससे किया, इससे भी ह्यूमन बॉडी से। तो ह्यूमन बॉडी से हम समझना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको ऐसा मानते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर आपके 3 डेफिनेशन दे रखी है ह्यूमन ज्योग्राफी की। फर्स्ट हम एक एक करके ज्योग्राफी की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, और तो इसमें कुछ कंसीडर करना है कुछ वर्ड्स को, तो आप ध्यान रखते रहेंगे और मैं आपको इसमें एक एक करके दिखा रहा हूं और याद भी इजीली हो जाएगी अगर आप इसको एक साथ लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। फर्स्ट डेफिनेशन रेडजेल ने दी। रेडजेल कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं। रेडजेल को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। अब आप देखिए इन्होंने क्या डेफिनेशन दी ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने दी ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सर्फेस। अब इसको याद कैसे करना है, लिखा हुआ तो है ये सारा। याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी। ये तो इजी है, तीनों में काम आएगा। तीनों डेफिनेशन में ये लाइन आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये याद करने वाली दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, सबसे पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है रिलेशनशिप। ये वर्ड बहुत ज्यादा जोर देना हमें रिलेशनशिप पे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। अब रिलेशन किसके बीच में, दो लोगों के बीच में। एक है ह्यूमन सोसाइटीज और दूसरा है अर्थ सरफेस। यानी 3 वर्ड अगर याद कर लोगे तो आपको पहली डेफिनेशन याद हो जाती है। कैसे, फिर ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन अकेला नहीं रहता, ह्यूमन हमेशा सोसाइटी में रहता है। तो चूंकि सोसाइटी में अगर रहता है तो इंटरेक्ट भी अर्थ के साथ अपनी पूरी सोसाइटी को लेकर करता है, वो अकेले इंटरेक्ट नहीं करता। तो ह्यूमन सोसाइटी का किससे इंटरेक्शन होगा, अर्थ के सरफेस से होगा। हम जिसके ऊपर रहते हैं, हमने मकान वहां बनाया, हमारे स्कूल वहां पर है, हमारे पार्क्स वहां पे है, सब कुछ। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा इसी को हम कहते हैं द ह्यूमन ज्योग्राफी इज सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये रेडजेल ने दी है जो कि जर्मन ज्योग्राफर थे। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन आप देखिएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ। आप देखो यहाँ पे सिर्फ सिंथेटिक गायब हुआ, बाकी स्टडी सेम है। तो ये लाइन तो कॉमन होगी जैसे मैंने बताया, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है, चेंजिंग रिलेशनशिप। ऊपर था रिलेशनशिप, अब यहाँ पर है चेंजिंग रिलेशनशिप। पहला पॉइंट ये नंबर 1 डाल दिया। नंबर 2 बिटवीन तो सेम था ऊपर, नीचे है अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये 3 वर्ड इसमें भी याद करना है। सबसे पहले तो याद करना चेंजिंग रिलेशनशिप।
ऐसा रिलेशनशिप जो चेंज हो रहा है पर डे। आज से अगर हम 1000 साल पहले बात करें तो मनुष्य प्रकृति का गुलाम हुआ करता था, नेचर जैसे रखती थी उसको रहना पड़ता था, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी, तो वो नेचर का गुलाम था। लेकिन आज आपको गर्मी लगती है, आप एसी ऑन कर लेते हैं, आपको ठंड लग रही है, आप हीटर ऑन कर लिया, आपको नदी को पार करना, आपने डैम बना दिया, शिप बना ली, इस तरह से एरोप्लेन से आप उड़ के जा सकते हो, दुनिया में कोई भी जगह 35 घंटे से दूर नहीं इस रूट में। तो ये सब क्या है, ये तो क्या हुआ, चेंज हुआ रिलेशनशिप। 1000 साल पहले अलग तरह का था, आज अलग तरह। तो एक तो ये कहना है चेंजिंग रिलेशन। दूसरा, किसके बीच में, वही सेम ऊपर बात है, ऊपर की तरह, किसके बीच में, अनरेस्टिंग मैन। मैन कभी रेस्ट नहीं करता, मनुष्य अगर एक जगह बैठ गया तो खत्म हो जाएगा। तो अनरेस्टिंग मैन, मैन कभी बैठता नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम कहा जाता ना, तो मनुष्य एक जगह बैठ नहीं सकता, आप उसको 4 घंटे बिठा कर रख लो, कभी नहीं बैठेगा। तो अनरेस्टिंग मैन है, यानी वो एक्ट तो करेगा, और किसके साथ एक्ट करेगा, अनस्टेबल। अर्थ खुद भी स्टेबल नहीं है, घूमती रहती है, 24 घंटे घूमती रहती, जब से पृथ्वी बनी तब से घूमती जा रही है। अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक गई अर्थ तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इस तरह से दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप लेकर, ऐसा रिलेशन चेंज करने वाला, इसके बीच में अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तीसरी डेफिनेशन इसमें और आपका इंपॉर्टेंट है, तीसरी में अगर हम देखें तो तीसरी डेफिनेशन क्या कहती है, थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग तरह की डेफिनेशन है, इसमें भी वर्ड हम एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब एक तरह का रिजल्ट, कोई हम रिसर्च करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट निकालते हैं उसको कंसेप्ट। तो पहला वर्ड तो हमने इसमें कंसेप्शन बना लिया। रिजल्टिंग फ्रॉम, किसका रिजल्ट, फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज। कैसा नॉलेज, सिंथेटिक नॉलेज है, बहुत रिसर्च करके बहुत मेहनत करके जो नॉलेज गेन किया जाता है वो सिंथेटिक नॉलेज हो गया। ऑफ द, ये द के बीच में स्पेस है, ध्यान रखिएगा, ये गलत प्रिंट हो गया। फिजिकल लॉज, किसका नॉलेज, फिजिकल लॉज का। जैसे फिजिकल लॉ क्या है, सुबह सूरज उगता है, शाम को अस्त होता है, कितने घंटे, कहीं पे सूरज ज्यादा देर दिखाई देता है, कहीं पे कम दिखाई देता है, ये फिजिकल लॉज है। हमारे अर्थ सूरज नहीं होगा तो हमारे पौधे नहीं उगेंगे, ये फिजिकल लॉज है। गर्मी पड़ेगी तो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये फिजिकल लॉज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी फिजिकल लॉज है जो हमारी अर्थ को चलाते हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन, वही सेम वर्ड ऊपर आ गया, किसके बीच में, लिविंग बीइंग, जो इसके ऊपर रहते हैं। अब फिर इसको समझने को, पहला ये है, दूसरा है फिजिकल लॉज, तीसरा इसके अंदर आ जाएगा रिलेशनशिप, और चौथा आ जाएगा इसके ऊपर रहने वाले व्यक्ति। यानी इसको भी इजी है, ये लगती है आपको टफ है, बहुत इजी। अब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्शन यानी कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग, विच यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोग और पृथ्वी को चलाने वाली शक्तियों, दोनों के बीच में रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो तीनों के तीनों डेफिनेशन ये किसने दी, ये पॉल विडाल डी लाप्लास ने दी, जो फ्रेंच थे। ये ऊपर वाले एलन सी सैंपल ने दी थी, जो कि कहाँ की थी, अमेरिका की थी, जिनके फोटोज अगर आप देखना चाहें, कई बार एग्जाम में फोटो भी पूछ लेते हैं कि फोटो दिखाइए कौन कौन है, किसका है, आप पहचानिए इनको। तो कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं। आप देखिएगा, ये देखिए, ये है आपका, ये रेडजेल है, ये आपके पॉल विडाल डी लाप्लास है, ये एलन सी सैंपल है। और आपने जो अप्रोच जो पढ़ी सिस्टमैटिक अप्रोच, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, कई बार इनका पिक्चर देके भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप इनको भी सॉल्व आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अब है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। इसको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, नेचर ऑफ एंड स्कोप में आपको ये पता करना है कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या है। उतना अगर आपको नॉलेज है तो आप ये मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या नेचर क्या है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ आपका इजीली, इसमें किसको सबसे मेन आपको क्या देखना है। अब आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है आपके इंडेक्स, आपकी बुक का इंडेक्स में आपने क्या क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी इस चैप्टर में हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, यही ज्योग्राफी है, यही ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं, ग्रोथ पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, फिर ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर वाटर रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो ये सब क्या है, यही इसका सब्जेक्ट कंटेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो बस यही हमारा क्या है, नेचर। यानी नेचर में आपको क्या समझना है कि क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, हमने लैंडफॉर्म्स पढ़े, लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म को बनाने के लिए कौन कौन से एजेंट्स जिम्मेदार है, जैसे रनिंग वाटर है, आइस है, तो इस तरह से वो पढ़े। वैसे यहाँ तो नेचर का सीधा सा मतलब है उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये वाला पहला बुक हो गई, ये दूसरी वाली बुक का अगर हम बात करें तो ये वाला आपका कंटेंट हो गया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा वाला पेज भी यहाँ पर हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
अब आप देखेंगे नेचर एंड स्कोप में, ये यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ क्या क्या पढ़ते हैं वो सब लिखा हुआ है इसमें। हम देखिए क्या क्या इनमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच ह्यूमन बीइंग हैव क्रिएटेड थ्रू देयर एक्टिविटीज। हम इसमें क्या क्या हाउसेज पढ़ेंगे, विलेज पढ़ेंगे, सिटी पढ़ेंगे, रोड पढ़ेंगे, रेलवेज पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, फॉर्म, पोर्ट्स एंड ये सारी की सारी चीजें डेली यूज वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारा का सारा यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये हो गया आपका लेक्चर। अब आते हैं हम ज्योग्राफी में, तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी में। जो पहला पॉइंट है वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये क्या चीज है, बड़ा इजी है, इसको भी समझना बहुत आसानी से है। अब आप देखिए एक पिक्चर दिखाता हूं, उस पिक्चर को देखने के बाद आप इसमें सोचते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये सिर्फ एक पिक अगर हम देखें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को शो करता है। जैसे मैंने बताया था आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले नेचर प्रकृति का गुलाम था। आग जलाने के लिए भी उसको चकमक पत्थर हुआ करता था, उससे आग जलाता था, वरना आग को नहीं समझता, आग को देख के डर जाता था। जंगल में रहना पड़ता था, गुफाओं में रहना पड़ता था, कोई घर तो होता नहीं था, बारिश हो जाती तो कहाँ जाता। खाने के लिए शिकार पर पूरी तरह डिपेंडेंट था, खेती करनी उसको आती नहीं थी। उस कंडीशन को हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी टेक्नोलॉजी का लेवल बिल्कुल लो। अब आप देखिए हाथ से कर रहा है सारा, ये कर रहा है। टेक्नोलॉजी का लेवल बिल्कुल लो था। चूंकि टेक्नोलॉजी का लेवल लो था तो क्या होगा, ह्यूमन एक तरह से नेचर का गुलाम हो जाएगा। नेचर जैसे कहेगी उसको वैसे चलना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में या इसको समझने की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural law. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा नेचुरल लॉ वाला। ये अगर वर्ड की अगर हम बात करें, इसको समझने के लिए बस इतना मेन जो वर्ड हमें याद करना वो है नेचुरल लॉ। वही जो अभी बात की थी नेचुरल लॉ, जो मैंने आपको बताया था। नेचुरल लॉ को कितना ज्यादा मनुष्य समझता है उतना डिपेंड करेगा कि वो नेचर पे जीत हासिल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि पहले उसको नेचुरल लॉज पता नहीं थी। जब तक नेचुरल लॉ पता नहीं था तो क्या था, उसका टेक्नोलॉजी का लेवल क्या था। ये देखो, यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजन। ये देखिएगा, टेक्नोलॉजी लूजन द शैकल्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब चिड़िया को उड़ते हुए देखे, अगर एक पिक्चर और अगर हम देखें इसमें, जिसको अगर आपको हम देखें, अब ये वाला पिक्चर देखिएगा नेक्स्ट। ये देखिए आप, ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहेंगे इसमें। इसमें क्या है, देखो चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो हवाई जहाज बनाने का ख्याल आया। तो टेक्नोलॉजी का लेवल लो था, तब तक हम नहीं समझ पाए, हम इसको डेवलप नहीं कर पाए। यहाँ पे हमने फिश को देखो तैरते देखा तो शिप बनाने का आइडिया आया हमारे पास। तो ये नेचर को जैसे जैसे आप समझोगे वैसे ही आप नेचर पे जीत हासिल करते हो। तो जब तक नेचर को नहीं समझा, यानी टेक्नोलॉजी का लेवल बिल्कुल लो था, तब तक मनुष्य क्या था, प्रकृति का गुलाम था और ये गुलामी की तरह ही वो चलता था। तो इसका मतलब जो लेवल था टेक्नोलॉजी का वो बहुत लो था। जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी को सीखा वैसे वैसे वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी बंदिशों को खत्म करता गया और नेचर पर जीत हासिल करने के लायक बनता गया। तो यहाँ पर जो बात जो जरूरी हुआ है, द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। यही आपका इसका मीनिंग है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मीनिंग यहाँ पे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। इन द अर्ली स्टेज अगर हम बात करें तो कहां देखिए आप, लूज साइकिल्स के बाद में, in the early stage of their interaction with their natural environment humans were greatly influenced by it। अर्ली स्टेज में वो नेचर से इन्फ्लुएंस था। दे अडेप्ट टू द डिक्टेट टू नेचर, वो जैसा नेचर कहती थी उसको जैसे डिक्टेट करते हो, आप कोई बोलता है वैसे तो नेचर को मानता था। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव। बिल्कुल प्रिमिटिव अवस्था में था, शिकार के लिए जिंदगी भर उनके पीछे भागता रहता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक शिकार बड़ी मुश्किल से महीनों में उसको आता था, खाता पिता परेशान होता क्योंकि उसको कुछ काम करना, टेक्नोलॉजी का लेवल बिल्कुल होता, तो वो प्रिमिटिव स्टेज में था। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर, यानी नेचर को स्ट्रॉन्ग माना गया है और मनुष्य को प्रिमिटिव कंडीशन माना गया है। इसको कहा जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी में एक तरह से नेचर हावी थी और मनुष्य उसका एक तरह से गुलाम था, या आप ये कह सकते हैं वो रिसीवर था, उसने जो भी दिया उसने वो रिसीव किया और उसी की तरह इंटरेक्ट किया। दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरी जो थ्योरी आती है, जिसको बाद में मैंने अभी बताया, सेकंड वाला पिक्चर जो आपको बताया था, उसकी अगर बात करें तो उसमें क्या हुआ,
दैट इज कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब क्या है, अगर पहले वाली बात करें, ह्यूमन बींग्स और नेचर फॉर रिसोर्सेज सस्टेन देम, द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटी बिकम द मदर नेचर, यानी वो नेचर को मदर के रूप में लेता था और उसी हिसाब से वो जीता था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, धीरे धीरे उसने टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू किया। जैसे ही टेक्नोलॉजी उसको समझ में आई, धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा चिड़िया को उड़ते देखा, उसके पंखों की कंडीशन देख के उसने हवाई जहाज बनाना शुरू किया। उसने फिश को तैरते देखा, अलग अलग फिशेज को, तो उसने शिप के बारे में, लकड़ी को तैरते देखा पानी में, तो लकड़ी के वैसे बनाऊं, पहले भारी चीज की बनाई, डूब गया होगा, हल्की चीज का बनाया, किस तरह से, फिर साइंस उसमें, फिजिक्स भी लगता है उसमें, सब चीजें लगती है, तो उसने तैरने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स बनाई, आज बड़े बड़े स्टीमर से क्या क्या नहीं चलते। तो ये टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे समझा, वैसे वैसे वो नेचर पे जीत हासिल करता गया, और जब वो नेचर पे जीत हासिल किया, यानी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई, एंड दैट इज नोन एज द पॉसिबलिज्म। ये देखिए दूसरा वर्ड जो है, दूसरी थ्योरी पॉसिबलिज्म, यानी मनुष्य ने बहुत सारी चीजें पॉसिबल कर दी जो पहले पॉसिबल नहीं थी। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में क्या है, मनुष्य गुलाम है और नेचर उसके ऊपर हावी है। लेकिन पॉसिबलिज्म में क्या हुआ, मनुष्य नेचर पे हावी हो गया, वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी को जी सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, गर्मी लगी तो एसी ऑन कर दिया, सर्दी लगी तो हीटर ऑन कर दिया, दूर जाना है तो कार बना दी हमने, कार से भी काम नहीं चला, हमने हवाई जहाज तक बना दिया। तो ये क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को हम सीखते गए, नेचर से सिखाया सब कुछ नेचर ने, वैसे वैसे हम उसके ऊपर जीत हासिल करते हैं। इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है, इस थ्योरी को नाम जाना जाता है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के बाद पॉसिबलिज्म, यानी उसने बहुत कुछ पॉसिबल बना दिया। तो इस तरह से ये पॉसिबल यहाँ पर हो जाता है। फिर हम तीसरी बात करते हैं, इसमें ये दो स्टोरी दे रखी है, बेंदा की स्टोरी वगैरह अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। उसके बाद में आता है एक और थ्योरी है तीसरी, ध्यान देखिएगा। तो ये पहला तो हो गया एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, दूसरा है पॉसिबलिज्म। तो एक और थ्योरी थी, ग्रिफिथ टेलर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भैया ये ठीक नहीं है। एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कह रहा है कि नेचर ही सब कुछ है, पॉसिबलिज्म कह रहा है कि मनुष्य ही सब कुछ है, ह्यूमंस आर एवरीथिंग। दोनों के बीच का रास्ता निकालो, ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने स्टॉप लुक एंड गो एक थ्योरी, अगर आपको याद हो थोड़ा क्या चीज है तो ध्यान दीजिएगा इस पर। एक मिनट बच्चों, तो यहां पे देखिए आपको ये ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बात यहां पर की गई है। और ट्रैफिक लाइट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, रेड, ग्रीन एंड एम्बर लाइट्स, तीन लाइट्स इसमें यहां पर आपके दे रखी है, आप देखिएगा। नेचर, हमें ये सिस्टम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ग्रिफिथ टेलर ये कहते हैं कि जब भी रेड लाइट हो जाए आपको रुकना है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो रेड का मतलब आपको रुकना है। जब भी एम्बर लाइट हो जाएगी यानी आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, ग्रीन होते ही आप रवाना हो सकते हो, और ग्रीन के बाद भी अगेन एम्बर लाइट होती है कि भैया आप रुक जाओ, रेड होने वाली है। अगर आप रुक गए तो ठीक है, वरना रेड लाइट हो जाएगी और आपका चालान कट जाएगा। नेचर भी हमें यही कहती है, नेचर कहती है भैया आपने बहुत एक्सट्रीम काम कर दिया, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, तो वो रेड सिग्नल देती है। कोरोना आपको पता होगा, कोरोना आने से पहले रेड सिग्नल मिला था हमें, हमने परवाह नहीं की, कोरोना आया बर्बाद करके चला गया, बहुत सारा हमारा नुकसान कर गया। अभी भी आप देखिए बहुत सारे, तो नेचर हमें सिग्नल देती है। रेड मतलब रुकना है, ग्रीन मतलब नेचर ने कहा जाओ खूब काम करो, और एम्बर मतलब चेतावनी के भैया थोड़ा देख ध्यान से। अगर हमने इन तीनों लाइट्स को फॉलो किया तो जैसे ट्रैफिक में हम बच सकते हैं चालान से या एक्सीडेंट से, वैसे हम नेचर भी हमें, तो इसको कहा ग्रिफिथ, इसने कहा मिडल पाथ बताया इसने कहा ना तो नेचर पूरी तरह हावी है ना ह्यूमन, नेचर मौका देती है, आप सीखिए और सीख कर आप नेचर पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों की तीनों थ्योरी आपकी जो है, पहला का नाम एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म है, दूसरे का नाम हो गया आपका पॉसिबलिज्म, और तीसरा हो गया नियो डिटरमिनिज्म। ये है तो डिटरमिनिज्म लेकिन एक अलग तरह का डिटरमिनिज्म है, इसको ग्रिफिथ टेलर की थ्योरी के रूप में नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम दिया गया स्टॉप लुक एंड गो, पर इन्होंने नाम दिया सिर्फ स्टॉप एंड गो। तो वो स्टॉप का मतलब रेड, लुक यानी एम्बर लाइट, एंड गो मींस ग्रीन लाइट। तो उन्होंने एग्जांपल देते हुए बहुत अच्छे से समझाया। इसको देखकर अगर हम समझ जाएंगे तो नेचर को हम समझ सकते हैं। ये यहाँ पे आपके तीनों थ्योरी पूरी हो जाती है। अब इसके बाद आता है ज्योग्राफी में तीन स्कूल्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, वेलफेयर स्कूल्स जिसको हम ह्यूमनिस्टिक स्कूल के नाम से जानते हैं, दूसरा रेडिकल स्कूल और तीसरा बिहेवियरल स्कूल। अगर हम तीनों की बात करें, स्कूल का मतलब एक तरह की थॉट है यहाँ पर। यहाँ स्कूल मतलब आप जो पढ़ते हो वो स्कूल नहीं, यहाँ स्कूल मतलब ज्योग्राफिकल थॉट का एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि कहाँ कहाँ कौन सी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले वेलफेयर स्कूल की अगर हम बात करें तो देखिएगा, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेयरली कंसर्न्ड विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबीइंग।
यानी हम सोशल वेलबींग की बात करते हैं इसमें, यानी मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है या जो भी पॉलिसी बनाएगी वो कहीं न कहीं ह्यूमन के सोशल बीइंग के वेलफेयर के लिए बननी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इसको ये थॉट हो गया। दूसरा थॉट रेडिकल थॉट है, ये पुराना सोच है। थॉट एम्प्लॉयड कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ये सपोर्ट करता है टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को कैसे कॉज को सपोर्ट करने की उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि कैसे पॉवर्टी है, पॉवर्टी के क्या क्या कारण है उसको, तो उस तरह से जैसे हम क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है एक्सपेक्टेड, उसकी बात अगर ये करती है। तीसरा बिहेवियरल है, बिहेवियर मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड चीज है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लाइव एक्सपीरियंस and also on the perception of the space by social categories because of ethnicity and race and regions। इस तरह से आपको तीनों ज्योग्राफिकल ये स्कूल्स भी यहाँ पर क्लियर होते हैं। इसके बाद आ जाता है फील्ड्स एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इससे पहले हम एक थोड़ी और चीज पढ़ देते हैं यहाँ पर फील्ड और सब फील्ड्स पर। ये देखिए, ये कुछ थ्रस्ट की बात करें, ब्रॉड स्टेजेस है ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ स्टेज है। पहला स्टेज था वो अर्ली कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मतलब है जब कॉलोनीज बनेगी, इंपीरियलिज्म का जो दौर था, जब अलग अलग कॉलोनीज बनाएगी, उस वक्त का पीरियड था। उस वक्त में मोस्टली क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शंस, खोज की गई कंट्रीज की। आपको पता है अंग्रेज भी भारत को खोजने के लिए निकले थे, पुर्तगीज भी भारत को खोजने के लिए निकले, सब लोग निकले। पहुंचे कौन, पुर्तगीज सबसे पहले पहुंचे। तो वो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन का एज था, वो ज्योग्राफी का पहला अप्रोच, यानी ये पीरियड है, ये अप्रोच है। पीरियड कौन सा था, अर्ली कॉलोनी। इसमें क्या अप्रोच अपनाई गई, खोज करने की अप्रोच अपनाई गई। सेकंड है लेटर कॉलोनियल पीरियड, जब उन्होंने कब्जा कर लिया अलग अलग देशों पे, उसके बाद उन्होंने कौन सी अप्रोच अपनाई, रीजनल एनालिसिस। उन्होंने एनालाइज किया अलग अलग रीजन को, कौन से रीजन में क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, किसको हमको लूट के लेके जाना है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अप्रोच थी उनकी। तो ये सेकंड अप्रोच होगी। फिर इसके बाद कौन सा आया, उसके बाद पीरियड आया 1930s, जो 2 वॉर्स के बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का पीरियड। उसमें जो तरीका था वो एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम एरियल डिफरेंशिएशन की बात करें, ये देखिए ईच रीजन अलग अलग है। ये प्लेन एंड माउंटेन साथ में इसका अलग रीजन है। माउंटेनियस इलाके में बिल्कुल खाली होगा, नेचर बिल्कुल क्लियर होगा, सब इसमें डिफरेंट। अब आप इन चारों पिक्चर में डिफरेंस आराम से दिखा सकते हैं। यहाँ नेचुरल बिल्कुल नेचर को दिखाया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू किया एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरह का कंट्री होगा, ये एक अलग तरह का डेवलप कंट्री है, ये रेगिस्तान है। चारों में फर्क है, चारों एरिया में डिफरेंसेज है। वो डेजर्टिक कंडीशन है, ये एग्रीकल्चर वाली कंडीशन है, ये डेवलपमेंट वाली कंडीशन है, ये बिल्कुल नेचुरल वाली है। तो ये क्या है, एरियल, यानी इन चारों में एरिया में डिफरेंस आप कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंस करना उन्होंने सिखाया गया। इस अप्रोच को हम किस नाम जानते हैं, एरियल डिफरेंस अप्रोच के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद आ गया लेट 1950s टू 1960। इस वक्त में क्या गया, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। स्पेशल यानी जगह से रिलेटेड, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और वो उसी के बारे में बताती थी, उससे लर्निंग होती थी, उन लोगों को उसके बारे में समझाया गया, अलग अलग एरिया के बारे में जानने से नॉलेज दी गई। तो इसमें क्या ये लिखा हुआ देखो, लॉज ऑफ फिजिक्स वर अप्लाइड ऑन मैप एनालिसिस, तो मैप बनाए गए, अलग अलग एरिया को मैप बना के अलग से क्लियर किया गया। फिर आया 1970s का पीरियड। उस पीरियड में क्या गया, इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल। अभी जो तीनों स्कूल हमने पढ़े, ये तीनों के तीनों स्कूल 1970s में हमारे सामने आए हैं। तो इस तरह से ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका 1990, ये वाला लेटेस्ट वाला है। इसमें क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। ज्योग्राफी में मॉडर्न टेक्निक आई। पहले मैप हाथ से बनाते थे, 11th में आपने पढ़ा होगा, टिकिया पे बनते थे, मिट्टी की टिकिया वगैरह। अब आप एक बटन दबाओ, गूगल अर्थ पूरा का ऑन हो जाता है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। तो ये वाला जो स्टेज है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला स्टेज माना जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज, जिसको फील्ड एंड सब फील्ड कहते हैं। देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले हम फील्ड की बात करें तो सोशल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को 6 पार्ट में बांटा गया यहाँ पे, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। फिर है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो देख 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनके अंदर क्या क्या फील्ड है, सब फील्ड की अगर बात करें, सोशल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ लेसर पढ़ते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिसिन ज्योग्राफी या मेडिकल ज्योग्राफी, ये पढ़ते हैं हम सोशल ज्योग्राफी के अंदर में। फिर आता है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में हम सिर्फ अर्बन एरिया या अर्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब आप देखिए पॉलिटिक्स भी आ गया सब्जेक्ट में, जैसे इंटरेक्टिव वाली मैंने बताया था आपको, ये थे। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी को हम इलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ा है, क्योंकि हम इलेक्शन करवाने, इतना बड़ा कंट्री है भारत, तो इलेक्शन करवाने के लिए आपको ज्योग्राफी तो पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी के हिसाब से आप चुनाव करवाएंगे, किस सीजन में करवाने, क्या करना है, तो वो पढ़ना। और मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री की पोस्टिंग करनी है। अब कारगिल में हर वक्त तो नहीं रख सकते, तो कारगिल के हिसाब से आपको पोस्टिंग देनी पड़ेगी, किस महीने में देना है, क्या सुविधा उनको देनी है। तो ये सब ज्योग्राफी का ही पार्ट है।
यानी मिलिट्री को भी डिप्लॉय करना है तो आपको ज्योग्राफी की जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे, हम पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, हम पॉपुलेशन के इधर उधर जाने के कारण पढ़ेंगे, माइग्रेशन वगैरह। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बाद सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल अर्बन एरिया में कितना फर्क होता है, क्या है, कैसे मकान बनाते हैं, गांव कैसे होते हैं, शहर कैसे होते हैं, उनके बारे में हम सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और फिर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, रिसोर्सेज की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी रिसोर्स कहाँ है, कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, कितने टाइप का एग्रीकल्चर है। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म और ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी आपको हर फील्ड में जितने अभी देखो इसमें साइंस, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ आ गया, फिजिक्स भी आएगी, सब कुछ आएगी। तो इतने सारे फील्ड हैं इसके अंदर, ये तो है फील्ड, और ये फिर इसके बाद इसके अंदर और है कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अगर हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।